हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वांडकम। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस वीडियो में हम डिराइवेशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज नन्स्ट इक्वेशन। और डिराइवेशन का हर स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से ये इक्वेशन डिराइव कर रही हूँ। आप एक बार देखेंगे तो बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। हमें पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन टेम्परेचर एंड यूनिट कंसंट्रेशन में कैलकुलेट करते हैं। मगर ये जो इक्वेशन है हम आसानी से किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन यूज़ करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं और आपको पूरा नोट्स आपको एंड में मिल जाएगा। तो दिस नन्स्ट इक्वेशन गिव्स quantitative relationship between your potential and the ionic concentration in the cell. So derivation से पहले जानते हैं फ्री एनर्जी और ये जो वर्क डन के बीच क्या रिलेशनशिप है। ये जो वर्क डन है ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज number of coulombs that flow, or this is equal to NF or N Faraday. N is the number of electrons involved in the cell reaction, and F is the amount of that is current flow in the cell, that is your 96,500 coulomb per mole. And the second point is the energy available per coulomb, or this is also known as your EMF of the cell. When EMF is maximum, then whatever the work is derived from the cell would be your maximum work done, and this maximum work done can be written as we have discussed, NF into E is the EMF of the cell, or this is NFE cell. और सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए वर्क डन वुड बी NFE, where E is the electrode potential. थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि there is a relationship between free energy change and work done by the system or the cell. From my last video you can find about this free energy. If you have not watched, please go to the description for the detailed link of that free energy video. Okay, तो अगर this free energy कम होता है और negative value होता है, then we will get maximum amount of work from the system. तो minus delta G को हम maximum work done भी लिख सकते हैं, और this would be your NFE in case of an electrode, और delta G is equal to minus NFE, or standard free energy change, that is delta G naught is equal to minus NFE naught, where this E naught is equal to your standard electrode potential. Let us consider one general reaction. एक reduction reaction लेते हैं जहाँ एक metal ion Mn plus is reduced to M with the addition of n number of electrons and in forward direction, and at the equilibrium constant K, as per the Le-Chatelier principle, this concentration of product by concentration of reactant. और हमको पता है there is one relationship between this equilibrium constant with the Gibbs free energy as well as with the standard Gibbs free energy. और ये रिलेशनशिप हम फ्री एनर्जी चेंज वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू G नॉट प्लस RT ln K. दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K हियर इन दिस इक्वेशन वी हैव डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln M by Mn plus
you know where R is the gas constant. और solution state में सॉलिड और मेटल कंसंट्रेशन को नेग्लिजिबल माना जाता है, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज इक्वल टू 1 और हमारा इक्वेशन हो जाता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन 1 बाई, और इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं. So I have taken this one, so it becomes a minus and it went to your numerator. Okay. अब इक्वेशन में हम डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू डालेंगे और हमारा इक्वेशन हो जाता है माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट माइनस आर टी एल एन. होप you have understood this up to this. Now by dividing minus nf on both the sides we have, so here also minus nf, here minus nf, here minus nf, we have to divide. So what we will get, E is equal to, this would be a plus E naught, this would be a plus RT by NF ln. ओके, अब ये जो नेचुरल लॉग ln को लॉग बेस 10 से कन्वर्ट करते हैं. When we will convert this natural log, we have to multiply 303. So RT by NF, this ln term becomes your log mn plus. Now putting the values of R, F and T, or R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole and F is equal to 96,500 coulomb per mole. टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन हम लेंगे और हमारा इक्वेशन हो जाता है E is equal to E naught plus 0.0591 by n log m n plus. तो ये हो गया आपका नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेयर वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर एंड एनी आयोनिक कंसंट्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और ये इक्वेशन से पता चलता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर और आयोनिक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वेयर आर एंड एफ आर द कांस्टेंट टर्म्स. और सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये नॉन्स्ट इक्वेशन है E नॉट सेल प्लस 0.0591 by n log concentration of reactants divided by concentration of products. और नेक्स्ट वीडियो में हम डैनियल सेल के सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री और 298 केल्विन में कैलकुलेट करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. प्लीज गो थ्रू द नोट्स एट द एंड. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.